اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ MNA جاوید اقبال وڑائچ اور MP عاصم مجید سمیت دیگر مرکزی عیدگاہ میں نماز عید ادا کی۔ عاصم صدیق کی رپورٹ۔ رحیم یار خان میں عید الفطر کے 503 اجتماعات ہوئے۔ سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ میں ہوا۔ رمضان المبارک کی برکات اور رحمتیں سمیٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے لیے ہزاروں لوگ سربسیوت ہوئے۔ میں نے جاوید اقبال وڑائچ اور MP آصف مجید کا کہنا تھا کہ عید کی خوشی اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ عید کا دن خوشیاں بانٹنے کا ہے۔ آج ہمارا بہت بڑا دن ہوتا ہے عید کا، تو یہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہوتا ہے، کیونکہ ہم پیچھے روزے رکھ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں روزوں کی اور عید کی پوری پاکستانی قوم کو عید مبارک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکستان وطن عزیز کو ترقی دے اور یہاں امن و امان قائم ہو۔ وائس چانسلر خواجہ فریج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی کے لیے اچھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ میں کہنا چاہوں گا تعلیم کے ساتھ ہی کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے، ادروائز ہم ترقی نہیں کر پائیں گے۔ سابق MP عمر جعفر کا کہنا تھا کہ عید کی نماز پر تمام سیاسی پارٹیوں سے بالا تر سب اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے۔ میں سب سے پہلے سب دوستوں کو سب کو عید مبارک کروں گا، اور اتنا اچھا دن ہے کہ ہم کوئی بھی جماعت سے جسی جماعت سے ہم سب اکٹھے عید پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا یہی کی ہے کہ پاکستان کو مضبوط کریں، ترقی پاکستان کو دے۔ عید کی نماز کے بعد ملک کی ترقی، سالمیت، پاکستانی سرحدوں کے رکھوالوں اور شہداء کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ جنوبی پنجاب بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نماز عید الفطر کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ نماز عید کے اجتماعات کہاں کہاں ہوئے، جانیں اس رپورٹ۔ جنوبی پنجاب بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کوٹ چھٹا میں جامع مسجد جمیل اڈا والی میں نماز عید قاری مفتی شہزاد فہیم کی امامت میں ادا کی گئی۔ سٹی صدر اور دیگر نے شرکت کی، جبکہ خانپور اور چوک سرور شہید میں نماز عید کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دیا کبیروالا، رنگپور، سناما، منٹن آباد اور فورٹ آباس میں نماز عید الفطر کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ مذہبی اور سیاسی شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ دوسری جانب پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ نماز عیدین کے بعد ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ فطر کے موقع پر شہری ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد دیتے رہے۔ اس موقع پر حضرت مولانا محمد احمد نے کہا کہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر لیا کا کہنا تھا کہ پیار، محبت، اچھا سلوک اور خوشیاں بانٹ کر ہم دلی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا اسلامی تہوار ہے، عید الفطر کا دن ہے، یہ خوشیوں والا دن ہے۔ آج ہم اس حوالے سے مختلف جگہوں پہ گئے ہیں، دارالامان بھی گئے ہیں، ہاسپٹل میں بھی گئے ہیں۔ صبح ہم نے تمام سیکورٹی کی جو ڈیوٹی ہے وہ چیک کی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال سلمان لودری، DPO سید ندیم عباس نے پولیس لائن میں نماز عید ادا کی، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے پوری قوم کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کا مطالبہ بہت واضح ہے، الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یہ حکومت زیادہ دن چلنے والی نہیں، بیرونی سازش اب تسلیم کی جا رہی ہے، امپورٹڈ حکومت کو کسی کو بھی تسلیم نہیں ہے۔ ملتان سے جنید انور کی رپورٹ۔ شاہ محمود قریشی نے نماز عید ملتان میں درگاہ بہاؤدین ذکریہ پر ادا کی۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بیرونی سازش پر قومی سلامتی کمیٹی نے ان کے موقف کی توثیق کی، عوام نے بھی اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مئی میں دوبارہ عوام کے پاس جا رہے ہیں، مختلف شہروں میں جلسے کریں گے۔ پاکستانی بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بزرگوں کو، نوجوانوں کو عید مبارک دینا چاہوں گا۔ اس کے بعد جو ڈیفنس اینالسٹ کا بیان آیا ہے اس نے ہمارے موقف کو تقویت دی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ اتفاق کیا کہ پاکستان میں بیرونی مداخلت ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملکی آئین پر ہر ادارے کی ذمہ داری کا تعین کر دیا، اگر ادارے اپنی ذمہ داری سے تجاوز کریں گے تو پھر ٹکراؤ ہوگا جو کسی کے مفاد میں نہیں۔ یہ کیسی حکومت ہے جس میں اپوزیشن ہی نہیں ہے؟ ہر ادارے کے رول کا ہمارے آئین میں ایک تعین کیا ہوا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے مقننہ کی، یہ ذمہ داری ہے عدلیہ کی، یہ ذمہ داری ہے ایگزیکٹو کی۔ اگر ادارے
अपनी आईनी जिम्मेदारियों को समझें और निभाएं तो हम सब के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। वाइस चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि पाकिस्तान में अच्छे लोग भी मौजूद हैं जिनकी मदद से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहते हैं। रिस्क अल्लाह ताला का है, धरने में खाने का कोई मसला नहीं होगा। जहांगीर तरीन को फिक्र करने की जरूरत नहीं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। ईद के पहले रोज मुल्तान में सियासी डेरों पर मुबारकबाद देने वालों का रश रहा। गिलानी हाउस में रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी को ईद की मुबारकबाद पेश करने वाले शहरियों का तांता बता रहा। अमजद मलिक की रिपोर्ट। मुल्तान में ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए सियासी डेरे आबाद हो गए। रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी को मुबारकबाद पेश करने इनके हलके की आवाम किसी तादाद में पहुंचे। अली हैदर गिलानी का इस मौके पर कहना था कि खुशी के मौके पर पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह पाक ने इन्हें मौका दिया है, मुल्तान की महरूमियां दूर करेंगे। 10 सालों से जो काम मुल्तान में रुके हुए थे दोबारा से शुरू करेंगे। ईद के ऊपर सबकी खुशियां वापस अल्लाह ताला सबको खुशियां नसीब फरमाए और जो पाकिस्तान के हालात हैं अल्लाह ताला उसमें हमें तौफीक अता फरमाए कि हम पाकिस्तान के हालात बदल सकें, लोगों की आसानियां पैदा कर सकें, लोगों के जो ज़ख्म है उन पर मरहम रख सकें। इस ईद पे हमने ये दुआ की है और ये अज़म भी किया है कि पाकिस्तान और मुल्तान की तरक्की जहाँ पर ख़त्म हुई थी हम वहाँ से शुरू करें। अली हैदर गिलानी ने कहा कि अपने हलके की आवाम का मशकूर हूँ जो इनके पास तशरीफ लाए। हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो चुका है, जल्द पंजाब काबीना मुकम्मल हो जाएगी। कोशिश करेंगे अलहदा सूबा बनाएं, मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर चलेंगे। लोगों की दिल में जो हमारे लिए, हमारे घर के लिए जो मोहब्बत है, इसमें अल्लाह ताला का बड़ा करम है। इन लोगों के भी बहुत शुक्रिया इनका जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे वाबस्ता रहते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट नजर आएगा। मुल्तान के दीगर सियासी डेरों पर भी ईद की मुबारकबाद देने वालों का रश लगा रहा और दिन भर गहमा गहमी अरूज पर रही। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। ईद उल फितर पर घरों में मजे के पकवान तैयार किए जा रहे हैं जबकि बच्चे ईदी बटोरने में मसरूफ हैं। ईद पर दोस्त अहबाब के एक दूसरे के घर ईद मिलने जाने का सिलसिला भी जारी है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। ईद उल फितर पर घरों में मजे के खाने पकाने का सिलसिला जारी रहा। दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने खूब दावतें उड़ाई। दिन भर मिलना मिलाना भी चलता रहा। ऐसे में बच्चों ने भी ढेर सारी ईदें इकट्ठी की। मेरे 800 रुपए। क्या करोगी? चीज खाऊंगी। कैसे क्या किया आज पूरा दिन आपने ईद? मेहंदी लगवाई और खाया पिया। सब लोगों को बहुत बहुत ढेरों ईद मुबारक। बहुत एंजॉय करें, इस दौर में जितना एंजॉय कर सकते हैं करें। शहरियों का कहना था कि ईद पर घर में मजे के पकवान तैयार हो रहे हैं। साथ ही छोटे बच्चों को ईदी दे देकर जेब खाली हो गई है। तो बच्चों की होती है, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चे और ये हमारे अंकल हैं, बुलाया हुआ था, ईद पे आए हुए थे। ईद तो अपने रिश्तों को मिलने से और दोस्त अहबाब बुजुर्गों से तो आए हुए थे, बहुत अच्छी गुजर रही है। आज सुबह से खाने बन रहे हैं। पहले तो वो चना चाट बनी जी, वो बहुत लजीज थी। फिर उसके बाद 3 किस्म के मुख्तलिफ सेवियां बनी हैं जी। अब उसके बाद बिरयानी भी बन रही है। शहरियों का मानना था कि सबको ईद का भरपूर लुत्फ उठाना चाहिए। ईद का दिन बहुत खुशगवार गुजर रहा है और बच्चों की वजह से ही ईद की रौनकें दोबाला होती हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मीठी ईद पर मीठे तोहफे के बगैर नामुकम्मल होती है। रहमियर खान में ईद पर बेक हाउस के ईद केक की धूम है। मीठी ईद पर मीठे केक के तोहफे के लिए खरीदारी का रश लगा हुआ है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। किसी से ईद मिलने के लिए जाए तो हाथों में मीठे तोहफे में केक हो तो देने वाले की चाहत और मोहब्बत को बढ़ा देती है। बेक हाउस ने ईद पर खुसूसी केक्स की तैयारी की है। ईद पर बनाए गए खुसूसी केक्स ऐसे दीदा ज़ेब के देखने वाला देखता ही रह जाए और खाने में ऐसे जायकेदार के जो खाए वो गर्विदा हो जाए। रहमिया खान के लिए बेक हाउस का केक अव्वलीन पसंद है। केक है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हम जब भी यहाँ से लेते हैं अपने रिश्तेदारों को हम करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं वो लोग। और हम जब भी लेते हैं यहीं से लेते हैं, कहीं और से हम नहीं लेते क्योंकि हमें यहाँ का टेस्ट बहुत पसंद है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सुन्नत भी है जो मीठा तकसीम करना और जो घर में मेहमान आए उनको मीठा खिलाना। बेक हाउस ये ऐसा नाम है रहमिया खान के अंदर कि इनका कोई सानी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, ये एक ऐसे समझने की एक रिवायत की तरह का है कि हम जिसके भी घर जाते हैं किसी खुशी में तो हम कोई मीठा साथ ले जाते हैं। तो अभी भी हम किसी के घर जा रहे हैं तो केक लेने आए हुए हैं और यहाँ का केक काफ़ी डिलीशियस होता है। क्रीमी, चॉकलेट, रेड आलमंड समेत केक की मुख्तलिफ अक़साम की ईद पर खुसूसी तैयारी खुशी को दुबाला बना देती है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।
मुल्तान के शहरी भी ईद का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। कोई अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ पहुंचा आइसक्रीम पार्लर, तो कोई स्वीट शॉप पर पहुंचा मिठाई खरीदने। ईद की खुशियां हर शहरी के चेहरे पर नजर आ रही हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। तो शहर भर की मिठाइयों और आइसक्रीम की दुकानों में रश बढ़ गया। शहरियों ने ईद की मुनासबत से मिठाइयां खरीदने के लिए हलवाई की दुकान का रुख कर लिया। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी ईद पर खुश दिखाई देते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी अच्छा रहा, दिन बहुत गोइंग वेरी फाइन, और डेफिनेटली ईद का मौका है तो जी मिठाइयाँ तो फिर चलती हैं, और मुल्तान की तो फिर स्पेशलिटी आपको पता है मिठाइयों में बहुत खास है। शहरियों का कहना था कि ईद का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है। इस मौसम में आइसक्रीम का कोई भी फ्लेवर मिल जाए वो खा लेंगे। ईद की खुशियां दोस्तों के साथ मजीद बढ़ जाती हैं। कोई भी मिल जाएगी खा लेंगे। आइसक्रीम खानी है, स्ट्रॉबेरी मिल जाए, जो भी मिल जाए हमने तो खानी ही है। ईद का दिन कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। शहरियों का मानना था कि ईद सबके लिए खुशियां मनाने का मौका है। महीने भर के रोजों के बाद ईद एक तोहफा होती है जिसे अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ मनाना चाहिए। कैमरामैन फहीम शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। ईद की मुनासबत से शहर भर की मिठाइयों की दुकानों में शहरियों का रश। शहरी ईद की मुनासबत से मिठाइयां खरीदने हलवाई की दुकानों पर पहुंच गए। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइए। जी बिल्कुल, ईद का पहला दिन है और मुल्तान की शहरी जो है वो ईद की खुशियां जो है मना रहे हैं। शाम का टाइम हो गया है और अब जो है मिठाइयों की दुकानों पर जो है पूरे दिन से ही जो है रश लगा हुआ है और अभी तक जो है रश लगा हुआ है। बात करते हैं शहरियों से। क्या बताइएगा कैसा गुजर रहा है ईद का दिन? मिठाई लेने आए हुए थे? जी माशाल्लाह बहुत शानदार गुजर रहा है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी अच्छा रहा, दिन बहुत गोइंग वेरी फाइन, और डेफिनेटली ईद का मौका है तो जी मिठाइयाँ तो फिर चलती हैं, और मुल्तान की तो फिर स्पेशलिटी आपको पता है मिठाइयों में बहुत खास है। और अब शाम जैसे एज द डे इज पासिंग मौसम बेहतर हो रहा है, गर्मी कम हो रही है, तो निकल रहे हैं, मिठाइयाँ ले रहे हैं और जा रहे हैं। और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान बताएं, मिठाई लेने आए? जी बिल्कुल, मिठाई लेने आए। ऐसा गुजरा ईद का? ईद का दिन बस सुबह तो माशाल्लाह जैसे ईद पड़ी उसके बाद सूरज का नाम है अपनी तपिश बरसाने लग गया, तो उसके बाद अब तो माशाल्लाह टाइम भी ठीक गुजर गया। पिछले 3 बज चुके हैं, मौसम ठंडा हो गया है, मिठाई भी ले रहे हैं। ईद का दिन है, मिठाई के बगैर तो ईद जो है गुजर ही नहीं सकती है। शाम का टाइम हो गया है, मौसम भी बेहतर हो गया है और अब जो शहरी हैं वो निकल रहे हैं। कुछ शहरी कह रहे हैं कि आज का मौसम जो है वो टफ था, कुछ कह रहे हैं कि बेहतर था, लेकिन अब जो है शाम का टाइम हो गया और जो है दुकानों पर जो है वो पूरे दिन से ही जो है रश लगा हुआ है। मिठाइयों वाली आपके सामने है कि शहरी जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं और यहाँ से दुकान से जो है मिठाइयाँ खरीद रहे हैं और ईद की खुशियाँ मना। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में ईद के मौका पर शहरी रात को एंजॉय करने होटल्स पर खाना खाने पहुंच गए। शहरी दोस्तों की हमरा होटल्स पर खाना खाने और गपशप में मसरूफ हैं। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताइएगा शहरी किस तरह से महसूस हो रहे हैं? जी बिल्कुल जी, आज ईद उल फितर का पहला दिन है और पहले दिन अगर बात की तो दिन के औकात में जहां शहरी जो है मुख्तलिफ अंदाज से एंजॉय करते रहे, दोस्तों के साथ गपशप करते रहे। अब रात का वक्त हो चुका है, रात के जो शहरी हैं और अब रात की जो मसरूफियत है उनका भी आगाज़ हो चुका है। दिन भर की गपशप थकान के बाद अब शहरी होटलों पर पहुंचे। होटलों पर जहाँ मज़े मज़े के खाने जहाँ खाए जा रहे हैं, वहीं पर दोस्तों से गपशप भी की जा रही है। कुछ शहरी में जिनसे बात करते हैं, वही बताएगा कैसी गुजरी ईद। अब होटल में पहुंचे, गपशप हो रही है। जी सर, बस सारा दिन रिश्तेदारों में घर आगे पीछे गुजारते रहे। दिन के टाइम काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अभी मौसम काफ़ी अच्छा है तो दोस्तों के साथ आए हैं इधर। माशाल्लाह बड़ा माहौल अच्छा है। बस खाना भी खाया, बिल दे रहे हैं और फिर अब वापसी की तैयारी है इंशाल्लाह। बाकी मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक हो सर। बिल्कुल जी, यकीनन खैर मुबारक, और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। भाई आप बताइएगा, यहाँ पर आप आए हुए हैं तो कैसा लग रहा है? ईद आज कैसी गुजारी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है भैया, अच्छी गुजरी है। बिल्कुल जी, अच्छी गुजरी है और ईद इस वजह से तमाम लोगों का यही कहना है कि आज का जो दिन है वो बहुत शानदार अंदाज से गुजारा है। भाई आप बताइएगा, आपने यहाँ पर खाना पैक करा, दोस्तों के साथ जाकर खाएंगे? दोस्तों के साथ जाकर खाएंगे। कैसी गुजरी है आज की? अच्छी गुजरी है। अच्छी गुजरी है। सर आप बताइएगा कैसी गुजरी ईद? दोस्तों के साथ आए हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के साथ फैमिली के साथ आए हुए हैं, बहुत इंजॉय किया सारा दिन आज अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम भी ठीक था, कुछ गर्मी दोपहर 12 बजे के बाद गर्मी तो हुई ही शुरू, लेकिन शाम के टाइम फिर मौसम बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी गुजरी। थैंक यू। यकीनन बहुत अच्छी गुजरी और शहरी सबका यही कहना है कि आज का जो दिन है बहुत शानदार गुजरा और इस वजह से तमाम जो शहरी आप होटलों पर पहुंचे हैं, इंजॉय किया जा रहा है। सबका यही कहना है कि ईद को जो है सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों के साथ, फैमिली और रिश्तेदारों के साथ आप होटलों पर पहुंचे हैं। रात में जहाँ पर खाना खा रहे हैं वहीं पर गपशप करने के साथ साथ आज ईद के दिन को भरपूर अंदाज सेलिब्रेट किया जाए। जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह भावलनगर में ईद का त्यौहार रवायती जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अली शेख। कासिम, बताइए।
یا بالکل عید نام ہے خوشیاں تقسیم کرنے کا اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونے کا. تو آج جو عید کا تہوار ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بہاون نگر میں بھی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. دن بھر جو وہ عید کی تقریبات کا سلسلہ جاری رہا کیونکہ بہاون نگر کا موسم آج شدید گرم ہے, تو جس کی وجہ سے شہری جو وہ زیادہ تر اپنی عید کا جو حصہ وہ گھر مناتے رہے, گھروں میں جو ہے ایک دوسرے کو ملتے رہے. لیکن اب جو شام ہوتے ہی شہریوں نے رخ کر لیا ہے ٹھنڈی اور میٹھی کلفی کھانے کے لیے, کیونکہ اب موسم جو کچھ ٹھیک ہو گیا, سارا دن جو ہے وہ گھر میں بھی رہے ہیں. تو اب جو ہے خوب ہلا گلا کرنے کے لیے شہری پہنچے ہیں کلفی پوائنٹ کا, تو ان سے بات کر لیں. آپ بتائیے گا جی آج سارا دن کیا مصروفیت رہی, عید کیسی گزری آپ کی؟ سر آج عید نماز پڑھی ہے, گرمی بہت تھی, سارا دن گھر میں گزارا ہے, بھائیوں کو رشتہ داروں کو ملے ہیں, سارا دن سوئے ہیں. اب موسم ٹھنڈا ہوا, ادھر نکلے ہیں, یہ ٹھنڈی کلفی کھا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ, بہت مزہ کر رہے ہیں. کس کس کے ساتھ آئے ہیں؟ بچے بھی ہیں, دوست ہی ہیں؟ دوست آئے ہیں, دوست مل کے آئے ہیں سارے. جی بالکل, دوستوں کے ساتھ کلفی بھی کھا رہے ہیں. ایک اور شہری بھی موجود, ان سے بات کر لیں. آپ بتائیے گا جی آپ کی عید کیسی گزری ہے اور آج جو وہ کیسا دن گزرا تھا آپ کا؟ آج ماشاءاللہ عید بہت اچھی گزری جی, دن بھی بہت اچھا گزرا ہے, بہت اچھا دن گزرا ہے آج. تو پھر اب یہاں کیا کرنے ہیں؟ اب دل کر رہا تھا, ٹھنڈا موسم ہے کہ بوتلیں پئیں یا کلفی کھائیں, بوتلیں پئیں یا کلفی کھانے دل کر رہا تھا, اس لیے ادھر آ گیا ہم. جی بالکل, عید کا دن ہے تو آج کے دن جو ہے وہ دل کر رہا تھا ٹھنڈی میٹھی کلفی کھانے کو لیے, تو جس پر جو ہے وہ شہری پہنچے ہیں بہاون نگر کے مشہور کلفی پوائنٹ پر, جہاں پر جو بہت بڑی تعداد میں کلفی کھا کر نہ صرف جو ہے وہ دوستوں سے گپ شپ کر رہے ہیں بلکہ عید کی خوشیاں جو ہے وہ بھی منا رہے ہیں. قاسم علی شیخ آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. عید الفطر پر سنما گھروں کی رونقوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. دن بھر ملنے ملانے اور کھانے پینے کا سلسلہ چلتا رہا اور شام ڈھلتے ہی شہریوں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ لمحات کو یادگار بنانے کے لیے سنما گھروں کا رخ کر لیا. مزید جان دیتے ہیں وسیم شہزاد کی اس رپورٹ میں. ملتان کے سینما گھروں میں عید کے روز شام ڈھلتے ہی رش لگ گیا. شہریوں کی کثیر تعداد اپنی من پسند موویز دیکھنے کے لیے سینما گھر پہنچ گئی. شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کے روز دوستوں کے ہمراہ فلم دیکھنا وقت گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے. بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہم سب دوست احباب رشتہ دار سب مووی دیکھنے آئے ہیں. گھبرا سینما گھروں میں صرف بڑے ہی نہیں بلکہ بچے بھی نظر آئے, جن کا کہنا تھا کہ دن بھر جمع ہونے والی عیدی سینما گھروں میں خرچ کرنے کے لیے آئے ہیں. فیملیز بھی ساتھ ہیں جن کے ساتھ مووی دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. دل بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے دوست احباب ہیں جن کی وجہ سے ہم انجوائے کر سکتے ہیں عید کے موقع, اور ہم گھومنے پھرنے کا لطف اٹھا سکتے ہیں. اس لیے بہت اچھا لگتا ہے اپنوں کے ساتھ عید منانا. شہریوں کا ماننا تھا کہ عید کے روز سستی اور معیاری تفریح کے لیے سینما گھر خاص اہمیت رکھتے ہیں. کیمرہ مین سفیر حیدر کے ساتھ وسیم شہزاد, ملتان.